वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दिया है, तो आई होप सब लोगों ने देखा होगा वो. या everyone must have received that lecture. Okay, great. Now today we'll be doing meiosis. मतलब मैंने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट बाकी था, वही करना था हमें. एक और बार माइटोसिस का एनिमेशन देखकर हम क्विक एक रिकैप कर लेते हैं. Prophase में nuclear membrane nucleolus disappears. Centriole because centrosome splits up and they produce spindle fibers. Chromosomes get condensed with the two chromatids attached to the centromere. During metaphase, chromosomal spindle fibers attach to the centromere of the chromosomes and they align to the equatorial plate. Anaphase में chromatids, they get separate from the centromere by the contraction of the spindle fibers and they are pulled towards the opposite pole. Telophase में nuclear membrane nucleolus reappears, spindle fiber disappears and chromatids जितने भी है ये सारे के सारे decondense होकर chromatin network बन जाते हैं. And during cytokinesis, furrows get deepened inside the cell membrane and it splits the cytoplasm equally. It distributes the cytoplasm equally into two daughter cells. So by the end of the mitosis, you see two daughter cells with equal number of chromosomes. Yes or no? Yeah. चलो बढ़िया, very good. एक और बार एक अच्छा सा रिवीजन, मतलब एनिमेशन देख के. एनाफेज एंड नाउ एट द टीलोफेज के टाइम पे ही फरोज बन जाते हैं. अब ये एनिमेशन में यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट याद रखना टीलोफेज के टाइम पे ही फरोज और ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं. ओके, यस, डिपेंड होते हैं. एंड साइटोकाइनेसिस में कंप्लीटली डीप होके वो दो डॉटर सेल्स पे सेपरेट कर देते हैं. एम आई वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट? चलो, तो आज हमें मियोसिस करना है. रेडी? मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. हेलो हेलो. now I'm audible. Okay, ठीक है, चलो. Okay, so the next is meiosis, reduction division. मैंने कहा था ना, I'll be this topic is only for 15 to 20 minutes जो मैं लूंगी, that's it. And फिर बाद में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. Now, if you remember, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया था इसका फंडामेंटल, तब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था. How many of you remember that question? अनुजा, ईशानी, नंदिका, ईशानी, मेहर, अनुजा, मुदित. मैम की आपने पूछा था कि अगर हम लोग जीन क्रोमोसोम्स का कॉपी होते हैं तो फिर हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं होते? Exactly. When we are receiving the chromosomes from both the parents, that is 23 and 23 from both the parents, then why we are different from our parents? मतलब हमारे तो काफी सारी सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना अपने दोनों मम्मी और पापा से, तो फिर हम इतने डिफरेंट क्यों है? यही मैंने क्वेश्चन पूछा था. मिला आपको आंसर इसका अब तक? Did you get the answer of this question? No. हृदय, मुदित, शिनित, आपको आंसर मिला? ओके, चलो ठीक है. फिर कब ढूंढोगे आंसर? बस चैप्टर तो खत्म होने को है. Now meiosis is हाँ. Can I try like when we get हमें क्रोमोसोम उन दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं, so but when they are formed they like pair differently, forming different characteristics or something like that. Oh, thank you Kavya, but you tried so boldly. Thank you so much. बहुत boldly आपने ट्राई किया, अच्छा किया, but this is not the right answer. तो चलो थोड़ा और वेट करते, थोड़ा और कॉन्सेप्ट को स्टडी करो काव्या. प्रोबेबली आप शायद फर्स्ट पर्सन होंगे जो आंसर को आइडेंटिफाई कर लेंगे. ओके, meiosis is called as reductional division, जहाँ पे क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस होते हैं हाफ में. मियोस मतलब टू लेसन मतलब क्रोमोसोम नंबर को हाफ में रिड्यूस कर देना. ओके, हाफ में. Now, reduction of chromosomal number is what leads to the production of gametes. So, cell division that produce gametes with half the number of chromosome is called as meiosis. So, what is the definition of meiosis? Cell division that produce gametes
with half the number of chromosome is called as meiosis. And where does it takes place? Very, very important. It takes place in humans, testes and ovary, wherein it produces sperm and ovum. So in testes, sperm is produced, and in ovary, ova is produced. Whereas in plants, it takes place in anthers, which produce pollen grains, and ovary, which produce ovule. यानी कि ओवरी में एंड एंथर में मियोसिस होता है, एंड बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव गैमेट्स, यानी कि एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड ओवरी प्रोड्यूस ओव्यूल्स. तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज टेकिंग प्लेस ओनली इन द हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, राइट. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ओवर हियर? यहां पर ना out of 23 pairs of chromosomes, out of 23 pairs of chromosomes, only single chromosome of each pair is passing into sex cells. यानी कि हर एक पेयर में से सिर्फ एक एक ही क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लॉइड single set of chromosome are passed into gametes. मतलब 23 pairs यानी कि 2 sets diploid, और diploid में से सिर्फ single set पास हो रहा है. Why only single set? It is very simple. अगर आपको याद हो तो मैंने वो माइटोसिस पढ़ाने से पहले एक आपको एक स्कीमेटिक चार्ट दिया था मैंने, याद है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉडी सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, एंड व्हेन दे प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, एंड व्हेन द गैमेट्स आर फ्यूज्ड 46 नंबर इज रीस्टोर्ड. याद आ रहा है किसी को? Yes, ma'am. If I go back to my slides, ये वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? ये वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था. सो द सेम थिंग ओवर हियर दैट आई एम रिपीटिंग, या मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वो ये है कि why the gametes are haploid. क्यों haploid gametes प्रोड्यूस किए जाते by meiosis? The answer is very simple. When the male and female gamete fuse with each other ना, normal diploid number फिर से restore होता है. Yes, फिर से restore होता है, and this restoration of normal diploid number will then develop the human body. यानी कि पूरे human body को develop करने के लिए आपको compulsory 46 number of chromosomes तो चाहिए ही चाहिए. Diploid is represented as 2n and haploid is represented by n. Meiosis is completed into 2 steps of division, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 को हम कहते हैं reductional division, जहाँ पे 46 का 23 हो जाता है, and meiosis 2 को हम कहते हैं equational division, mitotic division, जहाँ पे 23 का segregation होता है 23 and 23. So in short, in meiosis there are 4 daughter cells which are produced. How many? 4 daughter cells, and that too with half the number of chromosome. How much? Half the number of chromosome. Half the number. Now guys, I want every single person to keep your pen down, मतलब पेन नीचे रख दो, और अब जो मैं दिखाने वाली हूं, मैं चाहती हूं सब लोग इसको बहुत ध्यान से देखें, एंड आपको ये देखने के बाद जो भी कुछ समझ में आता है, या इफ एनी वन पर्सन इज गेटिंग द आंसर टू दैट क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पूछा था, वो सीधा चैट बॉक्स में डालेगा, वो कोई भी वर्बली आंसर नहीं देगा. इज दैट क्लियर? सो कीप योर आईज एंड योर माइंड ओपन नाउ. चेक आउट दिस वन. शांति से देखो. Four daughter cells. Once again, meiosis 1, reductional division हो रहा है, wherein the chromosomes are homologous paired and the pair is getting separated. मैंने कहा था ना reductional division, pair is getting separated and 2 daughter cells बन रहे हैं. अब ये दोनों daughter cells meiosis 2 करते हैं, and meiosis 2 में equational division होता है जहाँ पे chromatid separate हो रहे हैं. Can you see that? It is just like mitosis जहाँ पे chromatid separate हो रहे हैं, and chromatid separate हो जाने के बाद there are 4 daughter cells which are produced. तो यानी कि each daughter cell is haploid now. Once again, last बार chance दे रही हूँ, ध्यान से देखना. Let me see
who is that first person who can give me the answer to the question which I had asked during the first lecture of my chapter? Ki why are we different? Why are we different? और जो भी डाले वो चैट बॉक्स में डालना. मुझे रीजन चाहिए, मुझे प्रॉपर साइंटिफिक रीजन चाहिए. जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मुझे वो आंसर देना. जो आप ऑब्जर्व करके आंसर ढूंढे हो, मुझे वो आंसर चाहिए. Let's see how many of you can try it. Yes. All right, 4 daughter cells. Your time starts now. अगर किसी को आंसर मिला है तो प्लीज तुरंत टाइप करके भेजें. इस एनिमेशन में ही आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है. This animation itself is having the answer for your question. Fast. Come on. All right. I got the first answer of my lecture. Sorry. Yes. Oh, अर्नव एंड हृदय ने अपना आंसर दे दिया है. नो हृदय, नो. अर्नव थोड़ा और ध्यान से देखो. यू आर वेरी क्लोज इनफ. अर्नव, यू आर वेरी क्लोज इनफ. कम ऑन अर्नव, फोकस ऑन द स्क्रीन. आई एम श्योर आपको आंसर मिलेगा. हृदय, फोकस ऑन अ स्क्रीन. देखो मैं बता दूंगी तो आंसर पता चल जाएगा. इससे अच्छा है कि आप ही ध्यान से देखो क्या हो रहा है. कम ऑन गाइस. डन. एनीवन एल्स? ईशानी, क्या आंसर मिला आपको? अनुजा, मेहर, काव्या, बेटा. कम ऑन गाइस, इट्स वेरी इजी. 1 minute. टाइप करना जल्दी. No, Arnav. One person. I need that one person who can give me the correct answer. Come on. You all know it. No, Arnav. No. No, Arnav. You are now very far from the answer. I'm so sorry. Anyone would like to try? Ishani, Anuja, मुझे सबके पास से आंसर चाहिए. Ma'am, I can't actually type it down, but I can say it. I don't know how to say it. Like type it down. अच्छा ठीक है, काव्या आप बोलो, चलेगा, बोलो. Ma'am, first the chromosomes reduction happens, so they separate, and then again the chromatids separate. So like they both have different characteristics, and then they again join together. So that may lead to the formation. काव्या, आप मुझे प्रोसेस बता रहे हो, मैं सिर्फ वो एक स्टेप पूछ रही हूँ जहां पे वो वेरिएशन कर सकता है, which can lead to the variation. Which is that step? Come on, identify from my animation. It is so clearly visible. You know Ma'am, that the splitting of the daughter cells in the second, in the fourth. No. Everyone see the first phase. ध्यान से देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है. Oh my God, it was so clear. Ma'am, they fuse together, no?
No. No. Mudit, Devanshi, Adit, I want the answer from everyone. हाँ? सबको चैट बॉक्स में आंसर डालना है. अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा. इससे बेटर है कि आप यहीं पर ही बता दो. हाँ मेरा राइट है. परफेक्ट है अर्नव, वेरी गुड. और तेरी कोशिश है ना, मुझे कब से दिखाई दे रही थी. तू कब से कोशिश कर रहा था कि मैं कहीं ना कहीं से आंसर दूं. अब तू तेरी दोनों बहनों को मत बताना आंसर, वरना थप्पड़ खाएगा. सही में बता रही हूँ. डोंट गिव योर आंसर टू योर सिस्टर. नहीं नहीं अर्नव, नहीं बता रहा. मस्तीखोर, काव्या, चीटर. नो, चल खुद से ढूंढ. काव्या ढूंढो. हृदय कम ऑन. ईशानी, अरे यार बहुत सिंपल है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो. मुदित, चलना बेटा, ट्राई करना. नंदिका, देवांशी. मैंने क्या कहा, चलो सबसे बड़ा हिंट देती हूँ. फर्स्ट स्टेप में ही कुछ हो रहा है. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट के एक दो स्टेप्स में ही कुछ तो हो रहा है. ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी. बाकी सब तो अपने को पता है. नो नो नो. नो नो श्रीनित, नो. वो तो हमें भी पता है. 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, वो तो हमें भी पता है श्रीनित. उसके वजह से थोड़ी ना कोई डिफरेंस आ रहा है. ध्यान से देखो क्या हो रहा है उन क्रोमोसोम्स के बीच में. फर्स्ट स्टेप में ही दिख जाता है उन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो रहा है श्रीनित. जल्दी यार. आप लोग को ऑरेंज और ग्रीन कलर के क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं दे रहे क्या? ऑरेंज और ग्रीन कलर के क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं दे रहे? उनके बीच में क्या हो रहा है? लुक एट दैट. यस श्रीनित, यू आर राइट. नाउ यू आर राइट श्रीनित, नाउ यू आर राइट. एग्जैक्टली, वेरी गुड. वो थिकर तो होंगे श्रीनित, थिकर तो होना ही है, कंडेंसेशन तो होगा ही श्रीनित. बट जो तुमने सेकेंड पॉइंट लिखा ना, वो सही जा रहा है. वही है उसका एक्चुअल रीजन कि वी आर डिफरेंट. तू समझ रहा है श्रीनित? आई विल नॉट टेल यू द आंसर, बट तू समझ जा भी मैं क्या बोलना चाहती हूँ. श्रीनित, चल चल हृदय. यस यस, देख सबको आंसर मिल रहा है. 2 जन को तो मिल चुका है. हृदय, if you can explain it then also it is fine. Devanshi, Anuja, Ishani. Ma'am, that nucleus is separated. No. चलो मैं ही बता देती हूँ. यार बड़े थकेले लोग हो आप लोग यार, सही में, ट्रस्ट मी. कितनी बार मैंने पूछा, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है. और कितनी बार आप एनिमेशन देखोगे यार. और मैंने हिंट भी दे दिया कि फर्स्ट स्टेप में हो रहा है. सीरियसली यू गाइस आर सो डल. ऐसा ऐसा ये इंप्रेशन जमाना है आपको मेरे पास से? नहीं, गलत है. ऑब्जर्वेशन हैज टू बी वेरी पावरफुल. हाँ, साइंस ले रहे हो ना तुम आगे, अगर साइंस ले रहे हो तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखा करो. इट इज नॉट ओनली इन द केस ऑफ बायोलॉजी, इट इज इन द केस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. ए अर्नव, तू आंसर नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा. हाँ, तेरी दोनों सिस्टर्स है ना, बहुत शैतान है, बिल्कुल नहीं देगा आंसर. हाँ, एंड अर्नव इज राइट, श्रीनित इज राइट. इन दोनों ने मुझे सही आंसर दिया है कि फर्स्ट स्टेप में जो हो रहा है वो है मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स.
जो और किसी ने नहीं देखा, मैं बोल भी रही हूँ ऑरेंज और ग्रीन कलर के क्रोमोसोम्स को देखो, देखो फर्स्ट स्टेप में कितना क्लियरली दिख रहा है, दे आर एक्सचेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल, and because of this exchange we are different. That means even though मैं 23 set of chromosomes father and 23 set of chromosomes mother में से receive कर रही हूँ, but ये chromosomes via sperm and ovum, these chromosomes have changed their genetic material slightly during the meiosis. So that process is called as crossing over. Significance देखो, maternal or paternal chromosomes during the meiosis, they pair up with each other. And that pairing is called as homologous pairing. What is that called? Homologous pairing. जहाँ पे maternal और paternal chromosomes exactly pair up होते हैं due to their structural similarity. And जब ये pair up होते हैं, जैसे ही वो pair up होते हैं ना, उनके बीच में material exchange होता है. See this. The chromatid gets exchanged between the two members of homologous pair, and this exchange is called as crossing over, which results in genetic recombination. यानी कि genetic recombination से हमारे में variation आता है. अब तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन में? क्या अब भी नहीं दिख रहा है? Can you see it, everyone? Red color, maroon color और orange color की chromosomes. So this is paternal, that is from father, and this is maternal from mother. अब ये दोनों chromosomes आपस में pair up हो रहे हैं, homologous chromosomes, and at the point, at a common point, now that point is called as, now see, जब दोनों chromosomes homologous pair up होते हैं, मतलब जब properly एकदम match to match pairing हो जाता है, pairing के बाद दोनों chromosomes के जो chromatid है, यानी कि orange और red chromatid जो है, which are called non-sister chromatid, at a point called chiasmata, it will carry out crossing over. ये देखो, some maroon has gone into orange and some orange has gone into maroon, red color के chromosome में. And now after the crossing over, they split up into two daughter chromosomes. So the point where the crossing over takes place is called chiasmata, and यहाँ पर mixing up हो रहा है, यानी कि chromatid का exchange हो रहा है. Chromatid का exchange होने के बाद meiosis 1, मतलब meiosis 1 में the pair gets separated, यानी कि 23 और 23. तो imagine करो ऐसे 23 pairs हैं, बच्चा लोग imagine करो ऐसे 23 pairs हैं. अब सारे pairs के अंदर crossing over होगा, and फिर ये pair जो है वो split up हो जाएगा, मतलब pair gets separate. Yeah, the pair separates. So 23 जाएगा एक सेल में और 23 जाएगा दूसरे सेल में. Correct. Now both the chromosomes are having two chromatids. Correct. तो अब meiosis 2 में chromatid का separation होगा, chromatid का, and so you will get 4 daughter cells. Are you understanding? You will get 4 daughter cells, one with orange color chromatid, one with orange and little bit of red, one with red with little bit of orange, and one is full of red. तो ऐसे 4 टाइप के सेल्स मिलेंगे जो 4 गैमेट्स में कन्वर्ट होंगे. No, Shinit, it is not because of the crossing over problem. No. Mental issues और deficiency जो होती है, genetic deficiency का जीन से कोई लेना देना नहीं है. सबसे पहली बात, Shinit, deficiency का जीन से कोई लेना देना नहीं है. Number 2, mental issues that may be related to genetics or that may not be related to genetics. मतलब जरूरी नहीं कि सारे मेंटल इश्यूज जेनेटिकली इश्यूज हो, कुछ मेंटल इश्यूज नॉन जेनेटिकली भी होते हैं. ठीक है. अब जो जेनेटिकली इश्यूज होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नहीं होता है, वो जीन्स या फिर उनके क्रोमोसोमल नंबर की वजह से होता है. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस प्रॉपर्ली, बट द क्रोमोसोम नंबर्स में वेरी या फिर जीन्स में कोई प्रॉब्लम आती है. ठीक है श्रीनित? ओके. So now you understood that the mixing of genes during crossing over, during meiotic division, it provides great number of variation, guys. It provides huge number of variation in the progeny, and that is how the children of the same parents are different from each other in certain aspects, but they are similar too. Why they are similar? Because you can see only 25% of chromosomes, chromatids are getting exchanged. Only 25%, rest 75% as it is है. तो 75% में जो genes present है वो तो same to same आपको receive होगा. That's why you are showing some similarity with your mother and father. But जो 25% crossing over है उससे देखो कितना बड़ा variation आ रहा है. We are still different from our parents. Are you understanding? तो वो difference का reason है meiosis में crossing over होना.
एंड मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड विद ऑल, आई मीन गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड विद अ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम्स. मतलब हर एक गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स तो है, लेकिन हर एक गैमेट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करके आए. इज दैट क्लियर? अब कौन सा स्पर्म कौन से ओवम को फ्यूज होगा वो तो नेचर ही जानता है ना, वो तो नेचर ही जानता है. Now there are millions of sperms which are produced by the male at one single time, and there is only one ovum produced by the female. अब उस एक ओवम के साथ कौन सा sperm fuse होगा, we don't know that. We can't keep that probability also. We don't know. तो इसके वजह से that is why the reason is कि variation इतना strong create होता है. Is that clear? Yes. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So finally you got the answer, and finally I completed my chapter of structure of chromosome, cell cycle and cell division. बस थका दिया ना मैंने तुम लोग को इस चैप्टर में. फाइनली खत्म हुआ ये चैप्टर. चलो, खुशी मिली, रिलैक्स. अब आंसर मिल गया. टेक्स्ट बुक ओपन करो, जरा क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम देखो. कम ऑन एवरीवन, ओपन द टेक्स्ट बुक. क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम निकालो. Did you open it? क्रॉसिंग ओवर के डायग्राम को मार्क करो, टिक मार्क करो. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पूछते हैं, एंड आपको ड्रॉ करने के लिए भी पूछते हैं. एंड डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन भी वहीं पे दिया हुआ है, उसको भी मार्क कलर करो. भी करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा. इसे कलर भी करना पड़ेगा? नहीं, एक को आपको पेंसिल से डार्क कर देना और एक को डार्क नहीं करना है, तो डिफरेंस पता चल जाता है बेटा. क्लियर एवरीवन? यस मैम. और माइटोसिस के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है. चलो, लेट अस स्टार्ट. ओके, आपका होमवर्क होगा, होमवर्क है आपका, जो मैं आज असाइनमेंट क्रिएट करूंगी अभी लेक्चर के बाद. यू हैव टू सॉल्व द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, एंड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आता है तो वो आप डाउट मुझे पूछोगे गूगल क्लासरूम में. नो वन इज गोइंग टू डू व्हाट्सएप टू मी. गूगल क्लासरूम में ही कम्युनिकेशन होगा. मैंने पहले ही स्ट्रिक्टली बता दिया था ये. मैम ठीक है, बट कैसे होएगा? उस कमेंट डालना है आपको. कमेंट का ऑप्शन ऑन रखा है मैंने, चिंता मत कर. स्टूडेंट्स का कमेंट का ऑप्शन ऑन रखा है मैंने. ठीक है, आप वहीं पर ही अपना डाउट पूछोगे. मैं जो असाइनमेंट क्रिएट करूंगी आपको उसी में डाउट पूछना है. इज दैट क्लियर? यस. ओके, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, एंड सॉल्व करने के बाद उसमें आप सबमिट कर देना. ठीक है, चलो. Now, 5 मिनट रुक सकते हैं नया चैप्टर शुरू करने से पहले? क्या बेटा? 5 मिनट रुक सकते हैं क्या? क्यों, तुझे 5 मिनट रुक के क्या करना है? पूजा करना है, नारियल फोड़ना है? पानी पीना है. मुझे भी एक्चुअली पानी पीना है. 5 मिनट्स, जा जल्दी पानी पी के आ. थैंक यू मैम. तो पानी का बॉटल लेके बैठता नहीं है लड़का, देखो. Okay, guys, we are going to start with a very small and a very easy chapter. बताओ कौन सा? guess करो, guess करो. Genetics. है, जेनेटिक्स छोटा है और इजी है. वाह काव्या, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमको इजी लग रहा है. बस हो गया. अभी अभी मैंने इन लोग को डीएनए के उसमें से बाहर निकाला है. अभी वापस से जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी तो ये लोग सब लोग भाग जाएंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे. चलो चलो चलो, बताओ बताओ, विच चैप्टर वी आर डूइंग? वेरी इजी, सुपर डुपर इजी और बहुत छोटू चैप्टर. ट्रांसपीरेशन, सबसे इजी, सबसे छोटू और सबसे प्यारा चैप्टर. लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर. मैम कौन सा? ट्रांसपीरेशन. मैम इसका बहुत बहुत बार हो चुका है. ऐसा लग रहा है क्या हो चुका है? इससे बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में. वेरी गुड, अच्छी बात है.
All right, guys, everyone can see this screen. Chalo, बढ़िया सा chapter, transpiration. What are we going to do in this chapter? We are going to study transpiration experiments, measurement of transpiration, kinds of transpiration, factors affecting the transpiration, and finally adaptation in the plants to reduce the rate of transpiration. बहुत ही इजी है. आज हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करने वाले. सब लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे अभी के अभी. आपको टेक्स्ट बुक में मार्किंग जबरदस्त करनी है, एकदम बढ़िया मार्किंग करनी है. हाइलाइटर वगैरह लेके बैठो. ऑल राइट, कैन यू जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. मैं अभी आई पानी पी के. Chikuli mela babuli utumelo babu. Chino. Chico. Good morning. Good morning. Good morning. मम्मी पानी. हाँ. Okay guys. Transpiration experiments start करें. चलो. Shall we start? विद द चैप्टर. बहुत इजी है, सुपर डुपर मजा आने वाला है. कब स्टार्ट होगा कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा. फुल ऑन एकदम ऐसे जूम करके हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ओके, ये डेफिनेशन 1000 बार पूछा है, मतलब बेहिसाब, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इतनी बार पूछी हुई है. तो ये डेफिनेशन तो आपको कोई आधी रात को नींद में से उठा के सिर्फ कोई पूछेगा ना, अर्णव ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन दे. इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड फ्रॉम द अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अभी मैं सोचा मतलब ऐसा होना चाहिए, सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको कभी भी कहीं पे भी बाथरूम में भी रहेगा ना, अर्णव ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन दे. हाँ माँ, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड द अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मतलब इट हैज टू बी सुपर डुपर इजीली वे में आपको याद रखना है. सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? यस, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपराइज्ड. ठीक है, जब यू ऑल नो दिस कि वाटर जब वाटर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ हाई टेम्परेचर, वाटर वेपराइज हो जाता है, इवोपरेट होता है, मतलब वेपराइज हो जाता है, एंड दिस वेपर इज बीन देन मिक्स्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. करेक्ट. तो कई बार प्लांट्स, जब यू ऑल नो दैट प्लांट्स कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करते, पानी को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते. ठीक है ना. अब पानी को पानी सॉइल में से ढेर सारा कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बॉडी को अंदर से वेट रख सके, क्योंकि अदरवाइज प्लांट अगर अंदर से ड्राई हो जाएगा देन इट विल डाई वेरी इजिली, है ना. तो ये नहीं होना चाहिए. सो टू कीप देयर बॉडी कॉन्स्टेंटली वेट दे कैरी आउट एब्जॉर्प्शन. अब इतना सारा एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो इतना सारा तो वो स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी स्टोर करने की. तो जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर. आप समझ रहे हो, मतलब जो भी उन्होंने सॉइल में से एब्जॉर्ब किया उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा है दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर. और ये कहां से लॉस्ट होता है? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली फ्रॉम द लीव्स. क्योंकि लीफ है ना बहुत फ्लैट स्ट्रक्चर है, आप सब जानते हो. प्लांट बॉडी का सबसे फ्लैट स्ट्रक्चर कौन सा है? लीफ. एंड लीफ में से ये वेपराइजेशन बहुत इजीली हो जाता है, एंड उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ठीक है, लेकिन अभी भी हमें एक चीज समझ नहीं आ रही है कि इसका प्लांट का फायदा क्या है. मतलब अगर प्लांट ट्रांसपिरेशन कर रहा है तो इसमें प्लांट का क्या फायदा है ना. मैंने कहा ना, कूलिंग इफेक्ट,
कंटिन्यूसली वाटर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसके पूरे बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस रहेगा। प्लांट्स क्या हमारी तरह कपड़े नहीं पहनता है कि वो हर एक टेम्परेचर से वो बचे। ओके, प्लांट के रूट्स सॉइल के अंदर होता है, जो काफी गर्म होता है। सॉइल का अंदर का रीजन, अर्थ का अंदर का रीजन काफी गर्म होता है। प्लांट का शूट ऊपर की तरफ होता है, जो सनलाइट को फेस करता है। मतलब सोचो उसको कितना हाई टेम्परेचर को फेस करना रहता है। Continuously water absorption inner side of the plant body will keep the plant body entirely cool enough. Okay, वो reduce करेगा temperature, and plus leaf के surface का भी temperature reduce होगा, because leaf are something like this. ये देखो मेरा हाथ देखो, ऐसा है, exactly horizontal है, and पूरा का पूरा surface sunlight को face कर रहा है। तो अब अगर leaf का पूरा surface sunlight को face करेगा ऐसे, like entire surface is facing the sunlight, imagine for entire day it has to carry out photosynthesis. Don't you think so? उसका ये surface बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, and गर्म हो जाने की वजह से वो अंदर के leaf के cells को affect होगा, and that is why to keep the leaf surface very cool enough and to reduce the temperature during hot sunny days, this process is must. It is required. Okay, मैम बट जब हाँ हम बेटा, लीव्स को टच करते हैं तब वो इतना गर्म नहीं रहता। हम टच करेंगे तो गर्म नहीं होगा बेटा, लेकिन उनका सरफेस मतलब उनके जो सेल्स है वो काफी गर्म हो जाते हैं, एंड हाई टेम्परेचर मे डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तुम टच करने जाओगे तुमको गर्म फील नहीं होगा, हल्का सा फील होगा वार्म जैसा, बट उतना गर्म फील नहीं होगा। बट इमेजिन दोज आर मेड अप ऑफ सेल्स, अर्नव, वो पूरा का पूरा लीफ इज मेड अप ऑफ सेल्स, एंड हम तो कैसे, हम तो अपने बॉडी को कवर तो करते हैं, वो तो बेचारे कवर भी नहीं कर रहे, तो उनके तो सारे सेल्स एक्सपोज हो रहे ना सनलाइट को बेटा, तो गर्म तो होगा, एंड इंटरनल हीट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द एंजाइम्स। और अगर एक बार एंजाइम्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए तो फिर यार फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, राइट। एंड कूलिंग इफेक्ट भी तो देना है ना, लीफ अगर ठंडा रहेगा तो उसके एंजाइम्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। गेटिंग इट? मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ। सेकेंड, लुक एट द सेकेंड एडवांटेज। बताओ, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा मुझे? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। कंटिन्यूस ट्रांसपीरेशन से, कंटिन्यूस लॉस से, ओके। सपोज अगर ये एक प्लांट है, ये इसका लीफ है, ऊपर का शूट है ये, ओके। यहां से कंटिन्यूस वाटर जो है लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। Continuous loss of water in the form of vapor will put the entire plant into pressure. Yes or no? Will put the entire plant into pressure. So जब ऊपर के पार्ट्स में से कंटिन्यूस लॉस हो रहा है वाटर, सो जाहिर सी बात है ऊपर के पार्ट्स डिमांड करेंगे पानी का। Yes or no? वो ज्यादा डिमांड करेंगे वाटर का, एंड सो रूट्स उतना वाटर एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ भेजेंगे। सो जितना ट्रांसपिरेशन होगा उतना वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, एंड जितना वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उतना मिनरल्स एंड सोल्यूट भी पास होगा प्लांट की बॉडी को। सी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर आल्सो बीन कैरिड आउट इवनली ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। कहने के लिए क्या है ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर। अब आप सोच रहे होंगे मैडम लॉस ऑफ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन से क्या लेना देना है? अरे भैया, जब लॉस होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा ना, और जब एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यस और नो? एंड सी, मैंने ये पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, हायर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, higher the rate of transpiration, greater is the rate of absorption of water and solute from the soil. जितना प्लांट वाटर को लॉस करेगा बाय द ट्रांसपिरेशन, उतना ही प्लांट तेजी से, फास्ट वे से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल में से, एंड सॉइल में वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, एंड दैट इज बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट बॉडी। तो मतलब यूं समझ लो, एक तीर से दो निशान, एक तीर से दो निशान, पानी भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है, और कूलिंग भी मिल रहा है, खत्म। यस और नो? अब तीसरा जो है, अब ये तो दो मेन एडवांटेज है। सो गाइस,
ये काफी कॉमनली पूछते हैं ट्रांसपिरेशन के किसी भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन ये आता ही आता है, दैट इज गिव 2 एडवांटेज और गिव 1 एडवांटेज। ओके, 1 एडवांटेज ऑफ द ट्रांसपिरेशन। अगर 1 एडवांटेज दिया पूछा है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, विच एवर इज योर विश। ओके, मेरा कोई कंपल्शन नहीं है। और अगर दोनों पूछा तो दोनों लिखना है, बट ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, that is for sure. It's very important for all the experimental based question. Now, सबसे दुख की बात देखो क्या है, सबसे पेनफुल बात देखो क्या है। Out of total water absorbed by the plant, 98% water is lost. Oh my God. सिर्फ 2% प्लांट अपने लिए यूज कर रहा है, रेस्ट 98% इज कंप्लीटली लॉस्ट बाय द प्लांट। बाप रे, अगर उसको 98% लॉस करना है तो फिर वो एब्जॉर्प्शन कर क्यों रहा है? क्या करे, उसको करना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसी एब्जॉर्प्शन से उसके बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल में रह रहा है, एंड प्लस मिनरल एंड वाटर जहां जहां पे चाहिए वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या करें, राइट? तो 98% लॉस होगा। अब तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये 98% बहुत बड़ा अमाउंट है, बट प्लांट के लिए इट इज ओके, क्योंकि 2% इज व्हाट द प्लांट इज यूजिंग फ्रॉम द टोटल एब्जॉर्प्शन। तो अगर मैं टोटल एब्जॉर्प्शन कंसीडर कर रही हूँ तो टोटल एब्जॉर्प्शन में से 2% उसके लिए इनफ हो जाता है डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करने के लिए, रेस्ट इज जस्ट लॉस्ट। अब क्या करें, मजबूरी है, उसको ये प्रोसेस करना पड़ रहा है, एंड दैट इज व्हाई ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी इविल प्रोसेस। गिव रीजन, गिव रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव रीजन। बच्चों को आता नहीं है लिखना, ये बच्चों को लिखना नहीं आता है। जी आर, transpiration is called as necessary evil process, guys. Transpiration is called as necessary evil process. Give reason. What is the reason that you will give? What is the reason that you will give? Ma'am, because it leads to a loss of 98% of water by the plant. And only 2% is utilized by the plant for the photosynthesis. Rest all 98% is lost by the transpiration. But this loss is important for its cooling effect and for the distribution of water and mineral salts to all the parts of the plant body, and that is why it is called as necessary evil. मतलब इविल प्रोसेस है, उसके लिए तो पूरा नुकसान वाला प्रोसेस है, लेकिन उसको ये करना पड़ेगा क्योंकि इसी प्रोसेस से उसके बॉडी का टेम्परेचर कूल रह रहा है एंड उसके बॉडी को भरपूर वाटर और मिनरल सॉल्ट्स भी मिल रहा है। तो मैं फिर उसको एडवांटेजेस में क्यों डाला? एडवांटेज में डालना ही पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू बोथ ऑफ द पॉइंट्स, है ना? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गिव रीजन। सबको बढ़िया तरीके से आंसर लिखना है, तो आप आंसर क्या लिखोगे? ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी इविल प्रोसेस बिकॉज out of total water absorbed, 98% is lost by transpiration. Only 2% is utilized by the plant during the photosynthesis. The water lost by the transpiration helps in it gives a cooling effect to the plant body, and it helps in distribution of water and mineral salts, and so it is considered to be the evil process. Is that clear? Everyone got this answer? Yes, ma'am. सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया? एकदम, चलो बढ़िया, वेरी गुड। लेट अस सी द ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट। तो सभी लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे और बढ़िया से ट्रांसपिरेशन के एक्सपेरिमेंट्स को मार्क करना चालू कर देंगे, ठीक है? बहुत ही छोटे प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट्स है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट तो होगा भी नहीं। ये देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट रिलीज ऑफ वाटर बाय रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट। टू डेमोन्स्ट्रेट रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट। तो अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट का डायग्राम पूछते हैं ना, तो ये आपका आवाज अटक जाता है एकदम, आप वापस रिपीट कर सकते हो क्या? हेलो, अरे यार आज मेरा नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है यार। या फिर मेरा दिखा रहा है माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके, तो आप अपना चेक करो ना गाइस। बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4।
यस Ma'am, you're audible. आवाज आ रही है. आ रही है ना? परफेक्ट है, ठीक है. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 गाइस, मेरे ना ये एक्सपेरिमेंट्स के हेडिंग को ध्यान देना. दिस इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ओके, और कोई भी एक्सपेरिमेंटल डायग्राम जब आपसे पूछते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, पहला क्वेश्चन यही लिखा रहता है. पहला क्वेश्चन यही लिखा रहता है, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट शोन इन द अबाउ डायग्राम. तो आपको एम लिखने को हमेशा याद रखना. पूजा मैम के जितने भी स्लाइड्स में एक्सपेरिमेंट नंबर करके लिखा रहेगा ना, और जो हेडिंग दिया रहेगा ना, दैट विल बी द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. याद रखना ये, ठीक है. तो अभी हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले उसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट. इसके लिए करना क्या है, सिंपल सा है. ए बराबर बाबू लोग, बच्चा लोग, देखो एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, एकदम इजी. आप बोलोगे क्या मिस, क्या है ये, क्या चैप्टर है, छोटे छोटे बच्चे लोग का एक चैप्टर इधर डाल दिया है, ऐसा बोलोगे तो ये देखो, आपको लेना है मीडियम साइज का वाटर प्लांट, वेल वाटर प्लांट का मतलब क्या होता है, जिसको आपने अच्छी तरीके से भरपूर डेली पानी दिया हुआ है. ठीक है, 7 डेज तक पानी दे दो. अब वो प्लांट को लो, तो ये हो जाएगा आपका सेट नंबर 1. मीडियम साइज वेल वाटर प्लांट को लेना है, सेट नंबर 1. अब इसको करना क्या है, यू हैव टू कवर इट विद द पॉलिथीन बैग. यू कवर द प्लांट विद द पॉलिथीन बैग, और उस पॉलिथीन बैग का जो ओपनिंग है ना, उसको आपको टाई कर देना है अराउंड द बेस ऑफ द स्टेम. मतलब स्टेम के बेस के वहां पे बराबर टाइट उसको बांध देना है. बांध दिया, लीव्स को पॉलिथीन बैग से कवर करके उसको टाई कर दिया. अभी आप इस पूरे सेटअप को सनलाइट के अंदर प्लेस कर दो. क्या मिलेगा ऑब्जर्वेशन, बड़ा ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन ये होगा कि कुछ घंटों के बाद आपको पॉलिथीन बैग के अंदर की तरफ सरफेस पे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स. पूछो क्यों, सिंपल सा है. वाटर हैज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एंड वो वेपर सैचुरेट होके वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए. So the vapor which is given out by the leaves under the sunlight, okay, in the presence of sunlight, has saturated and has got converted into the droplets. So condensation हो गया, because condensation of vapor if outside temperature is cool. ये देखिए कितना सिंपल सेटअप है. ए भगवान, देवा कृष्णा है, छोटे बच्चे लोग को, बेबीज लोग को पढ़ा रही हूँ मैं तो आज, ऐसा लग रहा है. ओके, अब इसके लिए कंट्रोल क्या करोगे, सिंपल सा है. You will only tie the polythene bag. You will not take the plant and you will keep it in the sunlight. मेरे को तो पहले ये सोच में आ रहा है कि वो सनलाइट के नीचे रहेगा कि नहीं एक जगह पे, वो तो उड़ते रहेगा ऐसे यहाँ वहाँ. Okay, it will not show any water droplet because there is no plant due to absence of plant. Hence proved. अब इसको टेस्ट करने के लिए आप कर क्या सकते हो कि आप है ना, ये पॉलिथीन बैग टाई करने से पहले यू इंसर्ट अ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इन सेट नंबर 1. ये आपका सेट 1 है बच्चा लोग, ये आपका सेट 1 है. तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर इंसर्ट कर देना, छोटा सा स्ट्रिप इंसर्ट कर दो, एंड मतलब उसके अंदर डाल दो, एंड फिर पॉलिथीन बैग टाई कर दो. ठीक है, अब आपको 2 चीज दिखाई देगी, एक वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द पॉलिथीन बैग, एंड दूसरा the blue dry cobalt chloride paper turns into pink. Why? Because cobalt chloride is the hygroscopic compound. वो तुरंत मॉइस्चर या वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना कलर चेंज कर देता है, ब्लू टू पिंक हो जाता है वो. Are you understanding? Blue paper will turn into pink जैसे ही वो मॉइस्ट हो जाता है. So this will confirm the presence of water due to transpiration. संपला, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 खत्म. मैंने कहा था ना, एकदम ऐसा लगता है छोटे छोटे बच्चे लोग को मैं पढ़ा रही है. डन, इजी, एनी डाउट? Yes. पास. तो अभी अगर ये डायग्राम मैंने दिया, इमेजिन करो मैंने ये डायग्राम आपसे पूछा टेस्ट में, कितना इजी क्वेश्चन होगा इसके ऊपर. हाँ, कितना इजी क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन तो क्या होगा, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो तुम क्या लिखोगे, to demonstrate the release of water by the plant or by the leaves, release of water vapor from the leaves by the transpiration. Done. दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगी, why the polythene bag, दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी, what after few hours what is the observation in the setup.
तो आप क्या लिखोगे? We can see the release of water vapor from the plants. You can see the release of water And vapor. Wow, 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 wow. We can see water vapor. What are you going to write down? After some time, water droplets are seen under the polythene bag. खत्म. तीसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगी, what will happen if the dry cobalt chloride paper is inserted in the bag? आप क्या आंसर लिखोगे? It turns pink. Exactly. After a few hours, the dry cobalt chloride paper will turn into pink as soon as it becomes moist, which proves that the water is released by the transpiration. है ना? चौथा क्वेश्चन पूछूंगी, what can be the control setup for the given experiment? आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? Only polythene bag is tied and kept in the sunlight, which indicates and there is no water droplet, which indicates plant is absent and no transpiration. और पांचवा क्वेश्चन पूछूंगी, define transpiration. हो गया अभी क्या अभी सॉल्व हो गया. देखो समझ में आ गया. मैम जब आप ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग मुझे बता भी पीपीटी भेज दोगे क्या? तो पीपीटी एक्सपेरिमेंट अर्नव अभी नहीं मिलेगा. पीपीटी हमेशा चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा. ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में से नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद. अर्नव अभी से नहीं दूंगी मैं. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल नंबर 2. एम क्या है? व्हाट इज द एम? टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट. अब वही पूरा चैप्टर ही उसी के ऊपर है, तो वही तो डेमोन्स्ट्रेट करना है अपने को. चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 सेट लेंगे. ये मेरा फेवरेट है, ये मेरे को बहुत पसंद है एक्सपेरिमेंट. मतलब यूं ऐसा बोलो तो यूं है, सेट ए, सेट बी, सेट सी. ठीक है, अब तीनों सेट में आपको करना क्या है? यू हैव टू टेक वेल वाटर प्लांट. सॉरी, सेट ए और सेट बी में आप वेल वाटर पॉटेड प्लांट लोगे, छोटा सा पॉटेड प्लांट वेल वाटर वाला. सेट सी में प्लांट नहीं लोगे. चलो तो पहले सेट ए देखते हैं. सेट ए वेल वाटर पॉटेड प्लांट ले लिया. नाउ यू कवर द पॉट, नॉट द प्लांट. You cover the pot with the polythene bag. Why? To prevent the loss of water from the surface of the pot. Soil में से water loss नहीं होना चाहिए, क्योंकि soil में से भी तो water loss होता है ना evaporation से. और मैं थोड़ी ना यहाँ पे evaporation prove करने बैठी हूँ, मैं तो यहाँ पे transpiration prove करने बैठी हूँ. ठीक है ना? So physical process जो भी होगा उसको मुझे prevent करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे physiological process prove करने बैठी हूँ. So I will cover the pot with the polythene bag to prevent the loss of water. अच्छी तरीके से पॉट को ना कवर करके टाई कर दूंगी. नाउ आई विल कवर द एंटायर प्लांट विद द बेल जार. टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 56. जल्दी से एबीसी ए देखो. ठीक है, बेल जार से कवर कर दिया. एंड नाउ आई विल लीव इट अंडर द सनलाइट फॉर 30 मिनट्स. वो सी व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन. देखो ऑब्जर्वेशन देखो, टेक्स्ट बुक में देखो. वाटर वेपर कंडेंस ऑन द इनर साइड ऑफ द बेल जार. व्हाट डज इट प्रूव्स? What does it prove? That the leaves have lost the water in the form of vapor, and that has got condensed into water droplets. Yes or no? Yes. अभी सेटअप बी में मैं वेल वाटर प्लांट लूंगी, उसके भी पॉट को कवर कर दूंगी. बट अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे करने वाली. I am going to take a piece of dry blue cobalt chloride paper and I'm going to pin it on the wooden stick. एक पतला सा फुटपट्टी लूंगी मैं, वुडन का स्टिक लूंगी, एंड उसके ऊपर ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को मैं स्पिन कर दूंगी. एंड नाउ दैट आई विल कीप इट नियर द प्लांट एंड आई विल कवर द एंटायर सेटअप विद द बेल जार. I will see 2 things. 1, water vapor condense on the inner wall of the bell jar, and 2, blue cobalt chloride paper will turn into pink due to presence of moisture. Right? अब setup C क्या होगा? No plant. So when there is no plant, you take the एक कंट्रोल सेटअप बड़ा फनी लगता है क्योंकि उसमें प्लांट ही नहीं है. तो नो प्लांट. टेक एम्प्टी बेल जार इन्वर्टेड कंटेनिंग ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. ओके, खाली बेल जार ले लो, ओनली बेल जार, and with a blue cobalt chloride paper. Obviously control setup है, no change because there was no plant. Since there was no plant, there was no transpiration. बढ़िया. ये देखो सेटअप है, सेटअप B and setup C. समझ में आया? हम बहुत सिली एक्सपेरिमेंट्स है. अगर दिखाने का प्लांट है, दूसरे में दिखाना प्लांट नहीं है. अभी तुमको सिली लगता है. जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ये सिली है ना, सिली,
है, ये तुम्हारा सिलीपन निकाल देता है, क्योंकि तभी तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, तभी तुमको कुछ याद नहीं रहता। तो मत बोल सिली, ये सिली तुम्हारी बैंड बजाएगा, ठीक है? ऐसा मत कर, इतना भी अंडर एस्टिमेट मत कर। इजी है, इजी है, सिली मत बोल, इजी है, ऐसा मत। चलो बढ़िया, समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2? कोई गधा ही होगा जिसको नहीं समझ में आएगा। ऑलराइट, चलो मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ये तो जो थे दो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये तो था एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट, लेकिन हम ट्रांसपिरेशन को मेजर भी कर सकते हैं। वाह, कैसे? अब अर्नव ने बोला ना, आई कैन सी दैट द प्लांट इज रिलीजिंग वाटर वेपर। तो अर्नव, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर कर सकता है वाटर वेपर, तो बढ़िया है, बाकी हम तो भाई इनडायरेक्टली करने वाले। तो ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन का एक्सपेरिमेंट नंबर 3, वेइंग मेथड। करना क्या है, एकदम वापस सिली वाला, चिंदी वाला एक्सपेरिमेंट। आपको छोटू सा प्यारा सा प्लांट लेना है, ओके, एंड उस प्लांट को यू विल वेई, सुनो, यू विल वेई बिफोर एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सुन रहे हो? आपने प्लांट लिया, आप पहले उसको वेई कर दो, एंड फिर कुछ देर के बाद, कुछ लाइक आवर्स के बाद उसको फिर से वेई करो, ओके? ना याद रखना, उसके सॉइल सरफेस को आपको कवर करना है विद द पॉलिथीन बैग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन। डिफरेंस इन द वेट विल प्रूव द लॉस ऑफ द वाटर। खत्म। नहीं समझा? बहुत ही सिंपल है। प्लांट को सनलाइट के नीचे रखने से पहले उसके पॉट को पॉलिथीन बैग से कवर कर दो, उसका वजन ले लो, वो हो गया आपका x, ठीक है? फिर उसको सनलाइट के नीचे रखो कुछ घंटे के लिए ताकि वो ट्रांसपिरेशन करे, फिर उसको वेई करो, वो हो गया y। x माइनस वाई आपको बताएगा कि ट्रांसपिरेशन हुआ है, खत्म। इज दैट क्लियर? द डिफरेंस इन द वेट विल प्रूव द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। लेकिन क्या होता है ना, ये एक्सपेरिमेंट हमें इतना प्रिसाइज नहीं देता है रिजल्ट, तो हमने इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा। अभी हमने इंप्रूवमेंट क्या किया, इन योर टेक्स्ट बुक डायग्राम फिगर 5.3 देखो, देखो फिगर 5.3। हमने क्या किया, हमने ग्लास बॉटल लिया, ये देखिए मेरा बॉटल, हमने ग्लास बॉटल लिया इन विच रूटेड प्लांट इज केप्ट, मतलब प्लांट रूट के साथ, उसका रूट्स कट नहीं किया हमने, ओके, इन विच द रूट्स ऑफ द प्लांट इज डिप्ड। उस ग्लास बॉटल में हमने पानी भर दिया और उसके अंदर रूट्स, प्लांट के रूट्स को डिप कर दिया, ओके, एंड दिस बॉटल इज लिंक्ड बाय द रबर ट्यूबिंग, ओके, इट इज लिंक्ड बाय द ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब विद द हेल्प ऑफ रबर ट्यूबिंग। आप देख सकते हो एक छोटा सा साइड ट्यूब जो ग्रेजुएटेड है, मतलब जिसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है, उसको हमने इस बॉटल के साथ रबर ट्यूबिंग के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है? अब इसका ऑब्जर्वेशन देखो, डिक्रीज इन द वाटर लेवल इन द साइड ट्यूब, ये साइड ट्यूब का वाटर लेवल है ना, डिक्रीज होगा, क्यों मालूम है? द वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स, so decrease in the water level in the side tube will prove the water loss due to transpiration। सिंपल है। फिर वो प्रिसाइज होता है क्या अगर? नहीं अर्नब, काफी टाइम लगता है, ओके, इतना क्लियर नहीं दिखेगा बट काफी टाइम लगता है, फॉर फ्यू आवर्स, मतलब 2 से 3 घंटा नहीं, आपको तकरीबन 5 से 6 घंटा तो रखना ही पड़ेगा अगर आपको एक प्रॉपर वो डिक्रीज देखना है तो। अर्नब बट हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब कि सपोज बताती प्लांट ने हूँ सी, आपको ग्रेजुएटेड ट्यूब में जो पानी भरा है ना अर्नब, उसके सरफेस पे ऑयल डाल देना है, बिकॉज दिस ऑयल इज गोइंग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा प्रिकॉशन ये है, मतलब दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि हम इस पूरे सेटअप को, अर्नब ये जो पूरा सेटअप है, जैसे ही आपने सेटअप तैयार किया, ठीक है, आप इसका वेट ले लो, वेइंग मशीन पे रख के आप इसका पूरा सेटअप का वेट ले लो, और फिर उसको सनलाइट में रखो, एंड 5 to 6 आवर्स के बाद सनलाइट में से निकाल के उसका फिर से वेट करो, मतलब उसको फिर से वेट करो, तो मतलब डिक्रीज तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन वेट का डिफरेंस आपको और प्रिसाइज आंसर दे देगा कि हाँ भैया वाटर लॉस हुआ है। इज दैट क्लियर गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस Yes, ma'am.
सबको समझा? Yes, ma'am. पक्का ना? एकदम इजी है। चलो बढ़िया। अब दूसरा मेजरमेंट में दूसरा एक्सपेरिमेंट, वेइंग मेथड नंबर 2। ये था वेइंग मेथड नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 वेइंग मेथड नंबर 1, और ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 वेइंग मेथड नंबर 2। करना क्या है? ये भगवान, यू हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब विद द वाटर, ठीक है? उसके अंदर लीफी शूट डालना है विदाउट रूट्स। हेलो, रूट्स नहीं, ओनली लीफी शूट, मतलब छोटू सा ट्विग ले लो या छोटा सा स्टेम ले लो जिसमें लीव्स है, ठीक है? वो ओके, वो ले लिया। अभी वो आप इंसर्ट करोगे टेस्ट ट्यूब में। डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, डाला। अब आप उसके अब आप टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर का लेयर है ना, उसको ऑयल से कवर कर दोगे, जस्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन, कि भाई हमें इवापोरेशन नहीं करना, देखना हमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। अब इस ट्यूब को आप वे करोगे। सुनो, एक एम्प्टी बीकर में रख के, एक एम्प्टी बीकर में ये ट्यूब को रख के उसको वे कर दो, ठीक है? नाउ यू कीप द टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू आवर्स बिलो द सनलाइट, and then you weigh again with the मैम एक same बार beaker. रिपीट करो ना, मेरे से आपका आवाज एकदम कट गया था। बीकर वाला। हेलो, हाँ अर्नव, अर्नव सुन, आपने ऑयल डाला टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे और वाटर सरफेस पे ऑयल डाला। अभी ऑयल डालने के बाद आप इस पूरे टेस्ट ट्यूब को एक एम्प्टी बीकर में, एक खाली वाला बीकर कोई भी ले लो, उसके अंदर रख के उसको वे कर लो। वे कर लिया। अब वे करने के बाद उस पूरे सेटअप को आप सनलाइट के नीचे रखो फॉर फ्यू आवर्स, एंड फिर दोबारा से वो टेस्ट ट्यूब को उसी बीकर के अंदर, सेम बीकर के अंदर उसका वेट ले लो। डिफरेंस इन द वेट विल इंडिकेट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अभी होगा क्या मालूम है? यहाँ पे रूट्स नहीं है ना, there are no roots for absorbing the water, so the rate of transpiration also will be very less. मतलब आपको उतना डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं मिलेगा वेट में। वेट में मिलेगा तो हल्का डिफरेंस मिलेगा, बट उतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव टेकन शूट, नॉट द रूट। गेटिंग इट? हाँ या ना? यस Yes, समझ ma'am. गए? यस, ऑल राइट, बढ़िया, वेरी गुड। तो हम ऐसे प्रिसाइज होता है क्या? नहीं ना अर्नव, बिकॉज रूट्स नहीं है ना बच्चा, रूट्स नहीं है तो आपको प्रिसाइज ही मिलेगा। अगर रूट होता ना तो फिर भी हमें वेट में अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता, क्योंकि रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। जितना फास्ट ट्रांसपिरेशन होगा उतना फास्ट वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अब अगर ट्रांसपिरेशन ही स्लो हो रहा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी तो स्लो ही हो जाएगा ना बेटा। पूजा मैम, यस मैम। मेहर, नंदिका, श्रीनित, why was the camera off? नहीं मैम, इनका कैमरा ऑफ नहीं है मैम, इनका कैमरा ऑफ है। आई एम राइट नाउ इन द लेक्चर एंड दे हैव इमीडिएटली ऑन देयर कैमरास, मेहर एंड नंदिका। श्रीनित का तो अभी भी ऑफ ही है। अच्छा, बिकॉज मैं लेक्चर में देख रही हूँ कंटिन्यूअसली, आई एम वाचिंग इट। No, they just on their camera. Meher, why was the camera Please off? do not keep your off. I think early in the morning मैंने उठ के शौक के लिए मैसेज नहीं डाला था ग्रुप में that you have to keep your cameras on. This is the last warning I'm giving you guys. Ma'am, you can continue. Okay. Please do not keep your camera off, please. It's a request. Okay. हाँ अर्नव, तो बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर रूट्स नहीं है, तो क्या हो जाता है पता है? यू हैव, आपने क्या लिया? आपने एक छोटा सा स्टेम लेके उसको डिप किया ना पानी के अंदर। अब स्टेम में से एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन उतना फास्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अगर एब्जॉर्प्शन ही तेरा स्लो हो जाएगा प्लांट में, तो फिर ट्रांसपिरेशन भी तो स्लो ही होगा ना, अफेक्ट तो करेगा ना ट्रांसपिरेशन को। तो इसलिए वाटर लेवल उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा जितना हमें एक्सपेक्टेड है। आप समझ रहे हो? मैम फिर फायदा क्या है एक्सपेरिमेंट का, अगर हम कुछ प्रिसाइज है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता? इट्स अ सिंपल मेथड रादर देन डूइंग अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड। आप ये भी कर सकते हो, ऐसा ना नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप ये भी कर सकते हो। वी हैव एन ऑप्शन लाइक,
ठीक है, एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर विद दिस एक्सपेरिमेंट? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? फिगर 5.4। यस मैम। फिगर 5.4 भैया बेटा लोग, आप टेक्स्ट बुक के ना सारे एक्सपेरिमेंट्स के डायग्राम मार्क करो। हाँ, ये सब एक्सपेरिमेंटल डायग्राम पूछते हैं, ड्रॉ करने के लिए नहीं। बोलेंगे क्या? अरे नहीं बाबा, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन में आएगा अर्नव, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कोई भी डायग्राम आपको देंगे और आपको उसका क्वेश्चन पूछेंगे। अब डायग्राम देखकर आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी पूछेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ मार्किंग करो। चलो, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, पोटोमीटर, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ट्रस्ट मी, बहुत बार पूछा है, तो ध्यान देना। ठीक है, पोटोमीटर मेथड, now it is a device that measure the rate of water intake. सुनो, इनडायरेक्ट मेथड ही है, सुन रहे हो? पोटोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक, मतलब मैं इनडायरेक्टली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, आइडेंटिफाई कर रही हूं। हाउ? by measuring the rate of water intake by the plant. Getting it? यानी कि water intake is directly, मतलब it is equal to the water loss by the transpiration. Water intake is directly proportional to the water loss by the transpiration. जितना ज्यादा water loss होगा उतना ज्यादा water intake होगा। पोटोमीटर जो है, these are of various types. पहला है Genong's पोटोमीटर, टेक्स्ट बुक डायग्राम 5.5, 3 स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी लेबलिंग आपको मालूम होना चाहिए, वो लेबलिंग्स भी पूछेंगे, क्यों मैं पढ़ाऊंगी Genong's पोटोमीटर, ध्यान से सुनना। Genong's पोटोमीटर, now it is a potometer to measure the rate of water intake by the plant. मतलब ये पोटोमीटर क्या करता है? ये पोटोमीटर आपको वाटर इनटेक मेजर करवाता है, ठीक है? अलग अलग पोटोमीटर अलग अलग मेथड से काम करते हैं। Genong's पोटोमीटर जो है, दैट इज मेनली टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक। Darwin's पोटोमीटर इज टू डेमोन्स्ट्रेट द सक्शन फोर्स क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन, यानी कि डार्विन्स के पोटोमीटर से हम सक्शन फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। एंड सक्शन फोर्स किससे क्रिएट होता है? इट इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन, मतलब जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा सक्शन फोर्स अप्लाई होगा, तो हम सक्शन फोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। And Garraw's potometer is to demonstrate unequal transpiration from the two surface of dorsiventral leaf. यानी कि ये देखो guys, are you listening to me? ये dorsiventral leaf है, मेरा हाथ दिख रहा है, ये dorsiventral leaf है, ये dorsal side है और ये ventral side है। तो कौन से सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है वो Garraw's पोटोमीटर आपको आइडेंटिफाई करवाएगा। अपर सरफेस से ज्यादा होता है या लोअर सरफेस से ज्यादा होता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Are you understanding? अब बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है? मिस ऊपर का सरफेस सनलाइट को ज्यादा फेस कर रहा है ना, तो यहां से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। नहीं, नीचे के सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, नीचे के सरफेस से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। और वही चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हम Garraw's पोटोमीटर यूज करते हैं। समझ में आया? हम नीचे से ज्यादा क्यों होता है? मैं बताऊंगी ना अर्नव, अपन आएंगे ना, अपन एक एक लेंगे ना, टेंशन मत ले। अपना मेन फोकस करना है अपने को Genong's पोटोमीटर पे। चलो, तो तीनों पोटोमीटर का मेथड या उसका मतलब वो पोटोमीटर को कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ गया। तीनों का एम समझ में आया पक्का? पहले वाले का क्या है Genong's पोटोमीटर का? टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट, मतलब जो इनडायरेक्टली आपको क्या बताएगा? वाटर लॉस बाय द ट्रांसपिरेशन। Darwin's potometer to demonstrate the suction force created by due to transpiration, and Garraw's potometer to demonstrate the unequal transpiration from the surface of the dorsiventral leaf. dorsiventral समझा? dorsiventral, ओके। चलो, Genong's पोटोमीटर देखें।
Ready? Figure 5.5. हाँ मिस। मेरा भी फिगर आ गया यहाँ पे। पहले सेटअप समझ लेते, पहले सेटअप समझ ले। We will take a small twig. एक छोटा सा ट्विग लिया मैंने। सबको यहाँ पे लीफी शूट दिखाई दे रहा है मेरे डायग्राम में? यस सर। और ध्यान से देखो, उसके सरफेस को ऑब्लिकली कट किया है, उसके लोअर सरफेस को, ट्विग के स्टेम को ऑब्लिकली कट किया हुआ है। व्हाई? टू अलाउ लार्जर सरफेस एरिया फॉर वाटर इनटेक, ताकि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए लार्जर सरफेस एरिया मिल सके। क्लियर एवरीवन? ये पार्ट क्लियर हुआ? यस एंड दिस ट्विग इज फिक्स्ड इनटू द apparatus. बरोबर है? नाउ the entire apparatus is filled up with the water. तो apparatus में है क्या? Apparatus में there is a beaker which is containing a colored water. To this beaker there is a capillary tube, a bent capillary tube which is dipped inside, and this capillary tube is having graduated scale. You can see this graduated scale, okay, which can measure the bubble movement. This is a capillary tube, that is graduated capillary tube which is having a graduated scale, that is dipped to the beaker which is containing colorful water. This is a reservoir, this is a stopcock, and this is the tube, the side tube to into which the leafy shoot is attached. Setup clear हुआ? यस सर। Now इस पूरे apparatus को हम लोग पानी से भर देंगे, बट याद रखना जब भी आप वाटर फिल अप करो देयर शुड बी नो एयर स्पेस। बिल्कुल भी एयर स्पेस नहीं आना चाहिए, एयर बबल नहीं आना चाहिए। नाउ आप एक बबल इंट्रोड्यूस करोगे इनटू हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। इस हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब में आपको एक बबल इंट्रोड्यूस करना है। बबल कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? यू विल डिप इनटू द बीकर व्हिच इज कंटेनिंग अ वाटर, मतलब जहां जो बेंड पोर्शन है ना, ये कैपिलरी ट्यूब का ये जो बेंड पोर्शन है ये वाला, इसको आप डिप करोगे एंड फिर से उठाओगे। तो जब आप डिप करके फिर से उठा, मतलब सी यू हैव टू लिफ्ट द बेंड कैपिलरी ट्यूब अबव एंड देन इमीडिएटली डिप इट इन द कलर वाटर। तो जब आप बेंड कैपिलरी ट्यूब को ऊपर उठाओगे तो एयर सक होगा, एंड एयर सक करने के बाद इमीडिएटली आप उसको पानी, कलरफुल पानी में डिप कर दो तो बबल क्रिएट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? हेलो? Yes, everyone. Did you understand? कैपिलरी ट्यूब को आपको उठाना है तो एयर सक होगा एंड फिर उसको पानी बीकर के पानी में डिप कर देना है इमीडिएटली। फिर से एयर बबल क्रिएट होगा ना, ट्रैवल। हाँ, एयर बबल क्रिएट होगा, एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। नाउ आपने ये पूरे सेटअप को सनलाइट के अंदर रखा है, ठीक है? तो लीफ जो है वो ट्रांसपिरेशन करना स्टार्ट करेगा। सुन रहे हो? लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन करना स्टार्ट करेगा। Now as the transpiration proceeds, suction force is set up which will pull the water from the beaker. सुन रहे हो? जितना लीव्स ट्रांसपिरेशन करेगा, जो शूट है वो सक्शन फोर्स से पानी को खींचना स्टार्ट करेगा from the beaker. So what is going to happen, my dear students? जैसे ये पानी को खींचना स्टार्ट करेगा, ये जो बबल है ना, बबल, एयर बबल, हाँ, ये जो बबल है ना, एयर बबल, अभी जिसको मैंने मार्क किया है, दैट विल स्टार्ट मूविंग along the graduated capillary tube. मतलब बबल शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। द मूवमेंट ऑफ बबल इंडिकेट्स कि लीफ ने ट्रांसपिरेशन किया। अभी you will take the reading on the capillary tube which will give you the volume of water lost in the given time. आप कैपिलरी ट्यूब की रीडिंग्स नोट डाउन करोगे जो आपको बताएगा कि कितना वाटर लॉस्ट हुआ है एंड कितना वाटर इनटेक हुआ है। सो द ऑलराइट, अब जैसे ये एयर बबल इस तरफ शिफ्ट होता है, ऑलराइट, जैसे ये एयर बबल शिफ्ट होता है आपको उसकी रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है। नाउ यू कैन ब्रिंग दिस एयर बबल बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। हाउ? You will open this stopcock.
जब आप ये स्टॉपकॉक ओपन करोगे, रिजर्वायर में से वाटर वापस कैपिलरी ट्यूब में जाएगा एंड बबल को फिर से अपने पोजीशन में लेकर आएगा। आर यू गेटिंग इट? मैम बबल को वो बिग कंटेनर में डालिएगा कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहां पर रखेगा? नहीं नहीं नहीं, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही। सी ना, मैंने लिखा है बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन by releasing some water from the reservoir. So what is the importance of the reservoir over here? The importance of the reservoir is to bring the bubble back to its original position by opening the stopcock. Is that clear? Yes miss, but colored water की यूज करने बोला। अरे बच्चा अर्नव, कलर्ड वाटर इसलिए ताकि पानी का मूवमेंट अपने को कैपिलरी ट्यूब में दिखाई देगा ना। प्लेन वाटर रखेगा तो आपको मूवमेंट दिखेगा नहीं बबल का। अर्नव, एक तो बबल कलरलेस, पानी कलरलेस, कैसे दिखेगा? उससे अच्छा कलरफुल वाटर रखो ना, तो बबल तो कम से कम दिखाई देगा। अक्ल बड़ी की बहस। हमने समझा। वेरी गुड। इज दैट क्लियर एवरीवन? गेनोंग स्पोटोमीटर, मुदित, इसाया, अनुजा, देवांशी, ईशानी, श्रीनित, काव्या, Yes, ma'am. नंदिका, Yes, ma'am. ओके अब आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस ये कि दिस एंटायर ये जो पूरा सेटअप है ना गेनोंग स्पोटोमीटर का, दैट शुड बी मेड कंप्लीटली वाटर टाइट। प्रिकॉशन मार्क करो, प्रिकॉशन बहुत पूछते हैं। गिव एनी वन प्रिकॉशन ऑफ द गेनोंग स्पोटोमीटर एंड गिव लिमिटेशन। दूसरा प्रिकॉशन ये है that the twig should be cut obliquely under the water। मतलब आप जो छोटा सा ट्विग ले रहे हो ना, उसको पानी के अंदर डुबा के फिर उसको कट करना है। वो भी कर सकते हैं? हाँ इजी है, पानी के अंदर ट्यूब के अंदर डुबा के, हल्का सा डुबा के उसको उसके अंदर कट कर देना है ताकि एयर बबल ट्रैप ना हो जाए। तू अगर बाहर कट करेगा तो वो स्टेम के अंदर एयर बबल ट्रैप हो जाएगा ना, तो फिर वाटर एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। समझ रहे हो? टू अवॉइड द सक्शन ऑफ एयर बबल इनसाइड द ट्विग। ओके, अब लेकिन इसकी लिमिटेशन भरपूर है। पहला तो ये सबसे डिफिकल्ट टास्क, वो एयर बबल इंट्रोड्यूस कैसे करें। इट इज नॉट दैट इजी। दूसरा लिमिटेशन, जो आप छोटा सा ट्विग ले रहे हो दैट विल नॉट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम। एंड तीसरा, एनी चेंज इन द आउटसाइड एयर एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट द पोजिशन ऑफ एयर बबल। समझा? इस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ट्रांसपिरेशन को तो बहुत टाइम लगने वाला है इस हिसाब से। 3 से 4 घंटा या 4 से 5 घंटा। अब वो 4 से 5 घंटा आपका ट्विग भी तो जिंदा रहना चाहिए ना। अब तो ये सारी लिमिटेशन है। हेलो अर्नव, आप कुछ पूछ रहे थे? मिस, अगर ऐसा हुआ कि ट्विग की वजह से वो प्रिसाइज भी नहीं दे पाएगा? वही तो प्रॉब्लम है ना, वही तो लिमिटेशन है, हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं। यही तो उसकी लिमिटेशन है, इसलिए हमने पोटोमीटर यूज करना बंद कर दिया ना अर्नव। ये 3 लिमिटेशन की वजह से। सबसे पहला तो है वो एयर बबल इंट्रोड्यूस करना, वो इतना आसान काम नहीं है। दूसरा कि आपका ट्विग भी तो जिंदा रहना चाहिए ना, ट्विग ही मर जाएगा तो क्या फायदा। और तीसरा कि अगर आपके बाहर के टेम्परेचर में जरा सा भी इफेक्ट आया, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द पोजीशन ऑफ एयर बबल। अंडरस्टूड? लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपको गेनोंग स्पोटोमीटर के सुनो, आपको गेनोंग स्पोटोमीटर के हर एक क्वेश्चन में एक प्रिकॉशन और एक लिमिटेशन डेफिनेटली पूछते हैं। मिस एक क्वेश्चन था, काइंड ऑफ सिली था मिस। ये कलर्ड वाटर का जो कंटेनर है, तो उससे अगर कोई ऑपरेशन का प्रोसेस हुआ तो वो इफेक्ट तो नहीं करेगा ना फुल प्रोसेस को? नहीं, Am I very clear with the Genong spotometer? Yes, ma'am. मजा आया? इजी था गाइस? इजी था? मिस इजी था मिस, बट इसमें क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करेंगे? बताती हूँ बेटा। गुड आपने पूछा। पहला आपको डायग्राम देंगे, सुन रहे हो अर्नव एवरीवन? पहला आपको डायग्राम देंगे, डायग्राम में आपको लेबलिंग्स करनी है। मतलब मैं जो कवर कर रही हूं ना ब्लैक से,
बस ये लेबलिंग आपसे पूछेंगे। सुन रहे हो अर्नव? 1 यस मैम। 2 3 4 5। तो पहला क्वेश्चन आएगा लेबल 1 to 5। लेबल कर दिया, लेबल कर दिया। दूसरा, what is the aim of the experiment? Tell me, what is the aim of the experiment? To measure the rate of water intake by the plant. To measure the rate of water intake by the plant. हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, what do you observe after certain time? What do you observe in the setup? क्या ऑब्जर्व करोगे? The air bubble in the capillary tube moves forward. right? Yes, there is a movement of air bubble in the capillary tube which can be then measured through the graduated scale, right? And that indicates that the transpiration takes place by the leaves. चौथा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, गिव वन प्रिकॉशन एंड वन लिमिटेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। डाल दिया आपने प्रिकॉशन और लिमिटेशन। और पांचवा क्वेश्चन डेफिनेशन या फिर एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। खत्म। इजी है? हाँ, एकदम इजी ना? बस बढ़िया, सुपर है ना गाइस? मस्त है एकदम, एकदम इजी वाला। कैसा लगा चैप्टर अब तक? मैम अब तक तो इजी लग रहा है। मैंने बोला ना बहुत इजी है बाबा, इतना इजी पूछो मत। इसमें सर वीक ही बात है, ट्रांसफरेंस का कितना होगा, बाकी कुछ है ही नहीं। वही तो गाइस, हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर लिए आज। हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्रांसपिरेशन के रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर लिए। मिस बट आपने स्लाइड में कुछ 3 फोटोमीटर्स बताए थे। था इसमें। बेटा आपको सिर्फ गैनॉन्ग स्पोटोमीटर है, आपको सिर्फ गैनॉन्ग स्पोटोमीटर है। गेराउस स्पोटोमीटर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। गेराउस स्पोटोमीटर आपको टेक्स्ट बुक में कंटेंट में चैप्टर के अंदर नहीं है, चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है ना, ओपन करो सब लोग टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चरल बेस्ड क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 5 में गेराउस स्पोटोमीटर दिया है। दैट इज गेराउस स्पोटोमीटर। ठीक है बेटा? मैम वो 2014 क्वेश्चन वाला ना? पेज नंबर 67 पे। हाँ वही। पेज नंबर 67 पे क्वेश्चन नंबर 5, that is Garaus photometer, which I will be explaining you in the next lecture. Okay. Easy हो गया ना?